So, am I audible? Yeah. So, guys, today we are going to cover deep learning, and yeah. So, this is my introduction. कल भी दे दिया था मैं introduction. So, let's start with the next slide. As my topics for discussion are unsupervised learning, clustering techniques, and deep learning and its techniques. Most of the topics we have covered unsupervised learning, clustering techniques, and some implementation. But today we are going to discuss the most important topic, deep learning and its techniques. Because if we have image data, then we have to use deep learning. Okay, हमारे हमारे पास handcrafted data है, like CSV data, then we can use your traditional machine learning. But if we have image data, then we have to go with deep learning. Is it clear? So, what we are going to learn today? What is deep learning? Types of deep learning, applications of deep learning. Yeah, this is a little bit introduction of machine deep learning. Then we will discuss number plate recognition, the process behind number plate recognition. Then we will discuss QR code recognition, face recognition. Then the most important topic of deep learning, we are going to discuss CNN, convolutional neural network, in detail with mathematical part, and then we will discuss practical implementation of deep learning model CNN. ओके अगर किसी को कोडिंग का जीरो नॉलेज है, उसको नहीं पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो पहले मैं क्या करूँगा, टीचेबल मशीन से उनको पढ़ाऊँगा. ओके, first of all I will explain the process behind CNN. Then we will discuss practical implementation of deep learning model on teachable machine. हमारे पास एक टूल है टीचेबल मशीन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना डीप लर्निंग मॉडल तैयार कर सकते हैं और प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. ओके, उसमें हमें कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है. ओके, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, देयर यू विल नीड a TensorFlow, TensorFlow Lite file to use concept of deep learning in your Android device. And we can say, if you want to use machine learning in web development, if you want to use machine learning in web development, Android development, then you can use. If you have zero coding skill, still you can create a machine learning model. Okay. So clear, guys, what we are going to discuss today. Please unmute yourself and tell me, is it clear? Yes, sir. Okay, so let me start with the introduction of deep learning. 10 से 15 मिनट लूँगा. आज हम थ्योरी ज़्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी बोरिंग होता है, आई नो, बट मैं थ्योरी भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि थ्योरी भी आना ज़रूरी है उसके पीछे. ठीक है, so we will discuss. So now I'm going to start with introduction of deep learning. What is deep learning and why we call it deep? Okay, so deep learning is based on branch of machine learning. Yeah, yesterday we have discussed deep learning is subset of machine learning. Okay, let me open yesterday's presentation. Here I have discussed that deep learning is subset of machine learning. Means if traditional machine learning fails, then we have to use deep learning. Traditional machine learning we can use if we have handcrafted data. Means if we have CSV data जो हमने खुद अपने हाथों से बना रखे हैं. कल हमने एक बताया था ना, जो डेटा सेट हमने डिस्कस करा था, आयरिस डेटा सेट, नॉट दिस, इमेज डेटा सेट है, yeah, this one. This is your handcrafted data CSV file. Okay, where we have numerical data and the string data, numerical data features. This is your handcrafted data. But what if we have image data? है ना? Then we use your deep learning. Okay, clear? Harsh Sharma has raised a hand.
What happened, Harsh? मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मेरा फर्स्ट सेशन है, मेरा पहला क्लास मिस हुआ था, Okay. तो मैं अटेंड कर सकता हूँ प्रायर नॉलेज के विदाउट? Yes, you can use, क्योंकि डीप लर्निंग थोड़ा सा डिफरेंट ही है, तो मैं डीप लर्निंग स्टार्टिंग से बता रहा हूँ. ओके. ओके ओके And I have also shared link of Google Drive. There you will find all the previous recording of sessions. Okay. Okay, Harsh? ओके ओके So let me start with deep learning. Yeah, we are discussing deep learning. So as I said, deep learning is subset of machine learning. If we have image data, then we have to go with deep learning. And in deep learning, we have the concept of we have concept of artificial neural network. Why we call it artificial neural network? We will discuss it after few minutes. Before starting with your artificial neural network, कुछ मज़ेदार करते हैं, लाइक एप्लीकेशंस पढ़ते हैं पहले. ये डीप लर्निंग का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? ओके, वी कैन यूज़ मशीन लर्निंग, और सॉरी कल की स्लाइड है, वैसे यहाँ पे डीप लर्निंग होना चाहिए था. नो प्रॉब्लम. So applications of deep learning, where we can use deep learning. जहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं, सेम वहाँ पे हम डीप लर्निंग भी यूज कर सकते हैं. वाई? हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन. मैंने कल बताया था, मेरा रिसर्च पेपर जो मैंने पब्लिश किया था, उसमें मैंने हैंड क्राफ्टेड डेटा यूज किया था, एमनिस्ट डेटा सेट. एमनिस्ट डेटा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स. वी हैव 87,000 samples of handwritten digits. Okay, it was handcrafted data, CSV file. But if we have image data, then we have to use deep learning. Okay, so we can use deep learning in image recognition, object recognition, handwritten recognition, speech recognition, and your email spam. We can use deep learning everywhere. जहाँ पे भी मशीन लर्निंग यूज करते हैं, वहाँ पे हम डीप लर्निंग लगा सकते हैं टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी. ओके, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, नंबर प्लेट recognition. Number plate recognition is very important because we have similar concept like QR code recognition. परसों एक दोस्त ने पूछा था क्लास में, what is the concept of QR code. So I will discuss number plate recognition, and we have similar concept of QR code. Okay, so you can see license plate recognition. जब हमारे रोड से कोई भी गाड़ी जाती है, ठीक है, what it does, we have a camera mounted on a pole. What it does, it captures image. Okay, image capture करता है, फिर लाइसेंस प्लेट से जो नंबर्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, और उस यूज़र के अकाउंट में, उस यूज़र के पास जो चालान होता है वो चले जाता है. देखा है ना सब लोगों ने लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन. दिल्ली में तो काफ़ी यूज़ हो रहा है. ऑटोमेटिक कैमरा लगा रहता है और उसके बेसिस पे चालान लोगों के घर पे चले जाता है. देखा सब लोगों ने? Yes, sir. यस, एंड प्लीज अदर्स, किस किसने देखा है, प्लीज रेज योर हैंड. Yes, sir. अदर्स? सर मेरा तो चलान घर पे आ गया था. हाँ ठीक है, और मतलब काफ़ी लोगों ने देखा है. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन. व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा. ठीक है, अब ये जो कैमरा के बेसिस पे लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन होता है, ये काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है. दिल्ली में, यूपी में, अभी काफ़ी मतलब उत्तराखंड ऐसी जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अब यूज़ हो रहा है धीरे धीरे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नंबर प्लेट लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन. ओके, it starts with your image acquisition. What is image acquisition? Image acquisition means to capture image. The first process behind your deep learning, we have to capture the image. Image हो गया हमारे पास, उसी के बेसिस पे तो हम डेटा सेट बनाएंगे, इमेज कैप्चर करेंगे. ओके, हाउ इट स्टार्ट्स. फर्स्ट स्टेप, image acquisition. Image acquisition means how we are capturing the image. Okay, we have a pole.
in which camera is mounted like this. ठीक है, ऐसे रोड है सपोज, ठीक है, ये गाड़ी है, let us suppose ये गाड़ी है. So the first step of number plate recognition is image acquisition. Okay, image acquisition means how we are capturing the image. Okay, clear guys? First step, जो रोड पे जो कैमरा लगे रहते हैं, ओके, वो जो कैमरा करते हैं क्या करते हैं, पहले इमेज कैप्चर करते हैं. So the first step is image acquisition. Okay, we have a term image acquisition. Image acquisition means how we are capturing the image. The first step is image acquisition. Then second step is your pre-processing. Okay, pre-processing means suppose हमारे पास यहाँ से एक इमेज आ गई, ठीक है, ठीक, जहाँ पे इसके आगे नंबर प्लेट लगी है 1 2 3 4. इमेज कैप्चर की, इमेज कैप्चर करने के बाद हमारे पास एक इमेज आ गई, ठीक है. अब प्री प्रोसेसिंग क्या करेगा ना, इन प्री प्रोसेसिंग वी हैव लाइक इफ वी हैव नॉइज इन आवर इमेज and if we want to improve the quality of your image, then we use pre-processing. Pre-processing means noise remove karna or to enhance the image, to improve the quality of image. So this is called your pre-processing. Okay, pre-processing is necessary before applying your machine learning model, before applying your deep learning. क्योंकि deep learning हम अच्छे से तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इमेज हमारी साफ हो. इमेज साफ होगी, नॉइज नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी तो हम डीप लर्निंग अप्लाई कर पाएंगे. क्लियर गाइस? क्लियर? सेकंड स्टेप प्री प्रोसेसिंग. Yes, भैया. अक्षर, एनी डाउट? No, sir. Okay. So second step is, first step is image acquisition, second step is your pre processing. Now third step, we have pre-processed image, so now we can apply deep learning and we have OCR, optical character recognition. Okay, this is a concept in machine learning. What it does, it recognizes the characters, digits from your number plate. Okay, suppose this is our number plate in which it is written like anything UK 389. ऐसे, let's suppose this is your number plate. So we will apply deep learning model, we can apply convolutional neural network, we can apply any neural network, okay, to recognize the characters and digit from number plate. Okay, we will apply machine learning model. वो क्या करेगा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, लाइक ये U है, it looks like U, just a second. Yeah. When we apply deep learning model, it will recognize the characters and digits. So after applying deep learning model, it will predict that first character looks like U, then K, then 3, then 8, then 9. Means we have a text format of number plate. Okay, this is your third step, where we have applied deep learning model and we predicted our outcome and we got outcome as UK 389. Now we have fourth step. What is the fourth step? Fourth step is your, now we will match this pattern with database. Now we have database. अब database क्या होता है? database में क्या होता है ना, हर यूज़र का डेटा होता है. अब हमने जब अपना लाइसेंस बनाया तो सरकार के पास उसका रिकॉर्ड होगा कि मेरा लाइसेंस नंबर ये है, मेरा गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है, वो सरकार के पास सारा डेटा होता है. सपोज ये हमारा डेटाबेस है, इट्स लाइक ए टेबल. ठीक है, हमारे पास टेबल है, सपोज एक एक्सेल फाइल है, कुछ भी है. ठीक है, यहाँ पे यूज़र नंबर 1, यहाँ पे रोहित, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 एंड लाइसेंस नंबर 01, लेट्स से एनीथिंग. ओके, तो हमारे पास डेटाबेस है जिसमें सारे यूज़र का डेटा होता है. मेरा डेटा है रोहित,
मेरी गाड़ी का नंबर, मेरा लाइसेंस नंबर. So we have each and every data related to my vehicle and my license number. Okay, now what it will do, this is my number plate. हमारे पास एक और कॉलम होगा जिसमें नंबर प्लेट होगा गाड़ी का, लाइक सपोज 0UK389. Now the first step is matching. It will match this pattern with database. So these two are similar. So it will match last column license plate number with the predicted value. मीन्स अब मेरे पास डेटा आ गया, वैल्यू मैच करी, तो जो वैल्यू मैच कर रही है वो रोहित के साथ कर रही है, रोहित के लाइसेंस प्लेट के साथ कर रही है, तो रोहित का डेटा उसके पास फैच हो जाएगा. ठीक है, अभी क्या करेगा, रोहित के साथ जो भी एसोसिएटेड नंबर होगा या फिर अकाउंट नंबर एनीथिंग, उसको चालान चले जाएगा बेस्ड ऑन जो भी उसने किया है. ठीक है, उसके बेसिस पे उसको चालान चले जाएगा. दिस इज द होल प्रोसेस बिहाइंड योर लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन. फर्स्ट इमेज एक्विजिशन, प्री प्रोसेसिंग, third one is your applying your deep learning model, then fourth one is your database, how we are matching our values, how we are matching the predicted value with your database. Clear guys? This is the process behind your number plate recognition. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Others एक बार hand raise कर दो ताकि पता चल जाए. Sir, today we use Google Yes. Colab or another. Google Colab, yeah, we can use Google Colab, we can use Kaggle, anything. Google Colab भी यूज कर सकते हो, Kaggle भी यूज कर सकते हो, and we have other platform also. I recommend you should use Google Colab or Kaggle. They both provide similar functionality. Okay? मैंने Kaggle पे भी किया है, Kaggle पे भी अच्छा वो प्रोवाइड करता है फीचर्स. Clear, Shivans? Come to Saurabh. Got it, sir. Okay. Now we have discussed license plate recognition, and we have similar concept of QR code recognition. Okay, in which first of all हम QR code का स्कैन करते हैं, उसके बाद उस सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है. QR कोड से एसोसिएटेड जो नंबर होगा वो डेटाबेस से मैच होगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है. तो मैंने सोचा लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन डिस्कस कर लूँ, और उसके बाद जो भी अदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड टू रिकग्निशन आप समझ जाओगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग license plate recognition. Now the important topic, artificial neural network, means when we heard topic deep learning, there is the important topic we have artificial neural network. What it is, the term artificial neural network is derived from biological neural networks. How many of you heard biological neural networks? हमारे जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में we have biological neural network that looks similar like this, in which we have dendrite, cell nucleus, axon, synapse. So हमारे दिमाग में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारे न्यूरॉन्स के बेसिस पे होती है. ओके, इस टाइप का होता है हमारे पास डेंड्राइट होता है. बायोलॉजी वालों को अच्छे से समझ में होगा, आता होगा. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है. यस, So we can say that the communication system of our body is neuron. यस, न्यूरॉन. ओके, सो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा डीप लर्निंग में भी होता है. लाइक हमारे पास डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट इनपुट रिसीव करता है. ठीक है, सेल न्यूक्लियस मैंने पढ़ा था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. फिर एक्सॉन जो होता है वो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है. ओके, सिमिलर वी हैव इन डीप लर्निंग, वी हैव सिमिलर कॉन्सेप्ट. We have input layer in which receive inputs from other neurons. Then we have neuron. Then we predict our output. Okay, we have weights. ज़्यादा डीप में जाओगे तो काफ़ी बड़ा है डीप लर्निंग. हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस थर्ड ईयर में होंगे. डीप लर्निंग हम पूरा 6 महीने लगा के पढ़ रहे हैं, और न्यूरल नेटवर्क हमने 6 महीने लगा के पढ़ा था. वी हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन डीप लर्निंग. ओके, सो मैंने सोचा जो बेसिक है वो आपको बता दूँ. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव इन डीप लर्निंग, लाइक वी हैव बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स इन अवर ब्रेन.
and similar concepts we have in deep learning. Okay, we have input layer, neurons, and which predicts your output like this. We have input layer. This is your input layer which takes input. जो भी हम input provide करेंगे, हमने let's suppose image दी, image predict कर रहे हैं तो हमने पहले image input के देंगे, ठीक है, input देंगे हम पहले image. So the first layer is input layer. Then we have hidden layers. And you know why we call it deep learning? We call it deep learning because in deep learning we have n number of hidden layers. हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा hidden layers होती है तो हम उसे deep learning कहते हैं. That's why we call it as deep. We have deep hidden layers. Clear? First we have input layer which takes input from previous layers. Okay, अभी बहुत सारी layers होती हैं. So input layer basically means which takes input. Okay, then we have hidden layers, then we have output layers. ये 4 concept आपको पता होना चाहिए. In your deep learning we have input layer, hidden layers and output layer. अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे जब हम CNN पढ़ेंगे. Okay, so this is all about little bit introduction of deep learning. जैसे हमने क्या पढ़ा, deep learning का introduction पढ़ा, क्यों use करते हैं deep learning. If we have image data then we use deep learning, and some applications of deep learning. License plate recognition, artificial neural network, right, which is similar to your biological neural networks. We have in our brain we have similar structure. We have ये structure होता है हमारे पास हमारे brain में. Similar structure we have in our artificial neural network. This is your architecture of artificial neural network in which we have input, neuron, output. So in artificial neural network we have input layer जो input लेता है, then we have hidden layers, then we have output layers. Okay, types of neural network. We have feed-forward neural network, recurrent linear neural network, convolutional neural network, restricted Boltzmann's machine, autoencoder. मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने बताया हम 6 महीने के लिए पढ़ रहे थे. डीप लर्निंग काफ़ी डीप में है, बहुत कुछ है उसमें, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लगेगा. तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट we are going to discuss today is convolutional neural network. Okay, what is convolutional neural network? CNN. I'll show you implementation of convolutional neural network also. Okay, convolutional neural network are a special kind of neural network mainly used for image classification, object recognition. Okay, अगर हमें accuracy improve करनी है then we use deep कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क मीन्स हमारे पास हिडन लेयर बहुत ज़्यादा होंगे. इसमें हम लोग 10-10, 15-15 हिडन लेयर्स लगा देते हैं. अगर हमें CNN अप्लाई करना है, CNN अगर हमें बहुत सारी लेयर्स लगा देंगे देन वी कॉल इट डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. ओके, इतना क्लियर हुआ? आई नो थोड़ा बहुत हार्ड होगा क्योंकि अभी डीप लर्निंग अगर किसी ने आज तक कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हार्ड होता है. थोड़ा बहुत अगर किसी को समझ में आया तो रेज योर हैंड. ओके, अगर किसी को रिपीट करना है तो बताओ या फिर आगे कोई स्टार्ट करूं. अभी पढ़ेंगे आगे भी बहुत. सर रिपीट करो ना एक बार. ओके, काफ़ी कंफ्यूजन आता है क्योंकि अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं. डीप लर्निंग थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चल गया होगा कि डीप लर्निंग हम क्यों यूज़ करते हैं. वी यूज़ डीप लर्निंग इफ़ वी हैव इमेज डेटा. इफ हमारे पास हैंड क्राफ्टेड डेटा नहीं है देन वी यूज़ डीप लर्निंग. ओके, एप्लीकेशन हमने पढ़ा, ये पढ़ा. अब आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. आर्टिफिशियल मीन्स इंसानों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया. अब बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है वो तो बायोलॉजिकल है, वो तो पहले से बना हुआ है. बट आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि हम लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये बनाया है इंसानों ने, ठीक है. और ये आपका क्या है? बायोलॉजिकल है, पहले से है. सो इन योर बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क वी हैव न्यूरॉन्स. इन न्यूरॉन वी हैव डेंड्राइट, सेल न्यूक्लियस, एक्सॉन, सिनॉप्स. बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. अब डेंड्राइट क्या होता है? इनपुट रिसीव करता है, ठीक है. फिर एक्सॉन क्या होता है? ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है. ओके, देन वी हैव सिनॉप्स, सेल न्यूक्लियस. सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो कि हम लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया. इन विच वी हैव इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स, आउटपुट लेयर्स. फिर यहाँ से हम अब ऐसे तो जैसे ये है, इस वाली लेयर को हम इस वाली लेयर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव इन योर बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क. ओके, सो इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वी हैव
inputs, nodes, neurons, weights and output। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अच्छे से पढ़ना। ये तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसको समझाने से पहले लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है CNN। अगर आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है तो डाउट आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इमेज? व्हाट इज इमेज? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज इमेज। Collection of pixels. Yes, Isa is right. Collections of pixels. Anyone else? collection of visuals. Okay. हाँ, थोड़ा बहुत आपको पता है, तो पता ही है वैसे। So, image is collection of pixels. Okay, we have a matrix. Let us suppose we have 5 cross 5 matrix. अभी हमारी एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरीके की दिख रही है, ठीक है, एक इमेज है। सो इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, मीन्स वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 5 cross 5। suppose 5 cross 5, we can take any example, we can take 28 into 28 pixels, 128 into 128 pixels। अब ये सिर्फ समझाने के लिए है, जब हम अभी इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो हमारे पास 128 into 128 के पिक्सल्स होंगे, ओके। 5 cross 5 means length and width, okay। 5 cross 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। So now we have 25 boxes। 5 cross 5 means 5 5 is 25, so we have total 25 boxes and each box contains a pixel value। Let us suppose this is 2, this is 1, this is 0, this is 2, this is 1, this is 6, this is 8, this is 9, this is 10, okay 12। ऐसे हमारे पास और होगा, जैसे 2 1 0 0 0 6 4 8 9 20 2 6 2 8 0। Okay, so now we have 0 to in grayscale। I'm talking about grayscale right now, क्योंकि grayscale समझने में काफ़ी आसान होता है। Okay, तो grayscale, suppose I have a grayscale image in which I can represent each and every pixel in the range of 0 to 255। ओके, जो पिक्सल वैल्यू होंगी, वैसे 2 है तो इसको मैं 255 भी लिख सकता हूँ, 0 भी लिख सकता हूँ, 255 भी, ओके। इस रेंज में मैं कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। What do you mean by 255? 255 means white, 0 means black। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो वेरी करेंगी, लाइक 255 से कम होगा तो वो वाइट नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लैकिश साइड होगा। ब्लैक से ऊपर को वैल्यूज जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो थोड़ा शेड होते जाएंगी। तो दिस इज योर मतलब 0 और 255 इज योर वाइट, 0 इज योर ब्लैक, ओके। इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है इन योर मैट्रिक्स। क्लियर गाइस, या किसी को रिपीट करना है? Yes, sir. जल्दी जल्दी करते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। इन CNN we have a image is collection of pixels। Let us suppose I have 5 cross 5 image, then we use a concept of kernel। Kernel is what? Kernel is just like a mask, okay। Suppose I have 3 cross 3 kernel। Kernel contains, it also contains your pixels
let's suppose 1 0 1 0 2 0 1 0 6. Okay, we have a kernel. It's like your mask filter. Okay, हम क्या करेंगे, अपनी इमेज में कर्नल अप्लाई करेंगे। ऐसे हमारी इमेज थी, सबसे स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लगा देंगे तुम्हारा एक कर्नल। ओके, यानी कि पहले हमारी इमेज थी, इमेज के ऊपर हमने एक मास्क लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मास्क लगा दिया। सो अब क्या होगा, 2 के ऊपर क्या आ गया, 1, 1 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 1, 6 के ऊपर 0, 8 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 0। तो हमने मास्क लगा दिया। नाउ what it will do, it will generate product of sum, means 2 cross 1 sum of product, 2 cross 1 plus 1 cross 0 plus 0 cross 1, let me write it first, 2 cross 1 plus 1 cross 0 plus 0 क्रॉस 1, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 क्रॉस 0। इस तरीके से हम करते जाएंगे। लेट अस सपोज वी कैन स्टोर दिस इन वेरिएबल s एंड वी सपोज वी गॉट s as 20। ओके, ये सारा अप्लाई करने के बाद हमारा s आ गया 20। तो हम क्या करेंगे ना, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट अस सपोज 4 क्रॉस 4 का बना दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू 20 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मास्क को शिफ्ट करेंगे आगे ऐसे। अभी मास्क यहाँ पे नहीं है, अब मास्क एक कॉलम आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। अब फिर दोबारा से कंप्यूट करेंगे वैल्यूज। इस वाले 1 के ऊपर 1 रख देंगे, 0 के ऊपर 0 रख देंगे, 2 के ऊपर 1 रख देंगे। फिर सपोज हमारा अभी यहाँ पे 15 आ गया। ऐसे ही हम इसको और आगे खिसकाएंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा, फिर यह आएगा, यह आएगा, ये ऐसे आते रहेगा। अब आपको विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखना, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, प्लीज अटेंशन यहाँ पे अच्छे से देखना। दिख रहा है, दिख रहा है सबको? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, इज इट विजिबल? Yes, sir. देखो कैसे Yes, कैसे sir. हो रहा है। पहले मास्क इमेज पे लगा था, 4 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर? दिस इज योर फीचर मैप। ओके, फिर हम क्या करते हैं, फीचर मैप जब हम बना लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास इमेज थी, हमने उसको कन्वर्ट किया फीचर मैप में। अब फीचर मैप से क्या करते हैं ना, फीचर मैप की जो साइज है, लाइक ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है। लेट अस सपोज हमारा फीचर मैप 4 क्रॉस 4 का है। 4 क्रॉस 4 कैसे आएगा, जब हमारी ये तो अभी 5 क्रॉस 5 की इमेज है। लेट अस सपोज वी हैव 8 क्रॉस 8, 6 क्रॉस 6, तब जो फीचर मैप होगा ना वो डिफरेंट साइज का आएगा। ओके, लेट अस सपोज, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हायर क्लास में अगर जाओगे, वहाँ पे CNN आता है ना, तो ये दिमाग में हमेशा आएगा कि कैसे कंप्यूट होगा। ये क्वेश्चन भी आता है इससे, मतलब काफ़ी जगह क्वेश्चन भी आता है और पता होना चाहिए। अगर किसी ने पूछ दिया, अभी कोड में दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगेंगी। हम मास्क लगाएंगे, उसमें 3 क्रॉस 3 का इमेज होगी हमारे पास 128 × 128 की। ओके, हमारे पास फीचर मैप बन गया एक। लेट अस सपोज वी हैव अ फीचर मैप ऑफ 4 क्रॉस 4। ओके, हमारे पास यहाँ पे 8 है, 2 है, 10 है, 20। अब हम क्या करेंगे ना, इसको मैक्स पुलिंग लेयर लगाएंगे। अब व्हाट इज मैक्स पुलिंग? मैक्स पुलिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर फीचर मैप। हमने मैक्स पुलिंग लगाया, मैक्स पुलिंग क्या करेगा ना, इसके साइज को रिड्यूस कर देगा। अभी 8, 2, 20, 10, 20 था, तो यहाँ पे मैक्स पुलिंग लेयर क्या करेगा ना, एक और मास्क लगाएगा। अब वो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू चूज करेगा। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 20, तो यहाँ पे 20 स्टोर कर देगा। फिर ये आगे खिसकेगा मास्क यहाँ पे। अब यहाँ पे लेट अस सपोज वी हैव मैक्सिमम वैल्यू 30, सो इट विल स्टोर
30 in its नेक्स्ट कॉलम को मारो, ओके, रो को मत कॉलम। यहाँ पे पहले 20 आया, 30, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चूज करेगा 40, लेट अस सपोज 10। तो ये हमारा क्या बन गया, मैक्स पुलिंग। ठीक है, मैक्स पुलिंग लगाने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वही आया। ये कौन सा था, फीचर मैप। क्लियर गाइस, ये क्लियर हुआ। हमने उसकी देखो पहले ये 4x4 था, 4x4 था, हमने इसको रिड्यूस करके 2x2 कर दिया। उससे पहले हमारे पास क्या था, इमेज हमारे पास लेट सपोज 6x6 की थी, 6x6 से हम 4x4 में आए, 4x4 से 2x2 में आए। अब हमारे पास जैसे जैसे रिड्यूस होते जाएगा साइज, तो मॉडल के लिए उतना अच्छा है, वो अच्छे से समझेगा उस फीचर्स को। क्लियर, हमने कैसे रिड्यूस किया सब कुछ। Yes, sir. सर वो पूलिंग का नाम क्या यस था? सर। मैक्स पुलिंग। यहाँ पे आगे देखोगे, इसको मैं शेयर कर दूंगा, टुवर्ड्स डेटा साइंस है। मैं वैसे पीपीटी में लगा सकता था, फिर बहुत लग जाता। देखो मैक्स पुलिंग लगाया हमने, मैक्स पुलिंग लगाया तो मैक्सिमम वैल्यू 20 था तो 20, अगले वाले में 30, फिर 112, फिर यहाँ पे 37। अब एवरेज पुलिंग में लगाते हैं। एवरेज पुलिंग में क्या करता है, ये एवरेज वैल्यू ले लेता है इन सब की। ठीक है, ऐसे करके हम लगाते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैक्स पुलिंग जनरली हम मैक्स पुलिंग यूज़ करते हैं, CNN जब भी अप्लाई करते हैं मैक्स पुलिंग ही यूज़ होता है मोस्टली। ठीक है, एवरेज पुलिंग बहुत कम यूज़ होता है, मैक्स पुलिंग ही हम यूज़ करते हैं। क्लियर, शिवांश, ईसा एंड एवरीवन। Yes, sir. Okay, so now we will discuss practical implementation. यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया ना? प्लीज एक बार Yes, sir. हाथ खड़ा कर दो सब लोग, किस किस को समझ में आया। वैसे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था CNN, बहुत जगह यूज़ होता है CNN आपका। अगर इमेज डेटा है तो CNN ही यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो मतलब 6-7 लोग एक्टिव हैं काफ़ी। ठीक है, अच्छा एक्टिव होना चाहिए हमें। तो किसी को कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, ओके। सो जल्दी से अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। 1 घंटा से ज़्यादा वैसे नहीं लेंगे, ले लेंगे मतलब पूरा इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही लेंगे। सो वी हैव डिस्कस योर आइरिस डेटा सेट। व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज अ फ्लावर। So we have different species of iris flower. We have Iris centosa, Iris versicolor, Iris virginica. How we differentiate these species? With the help of features, we have petal length, petal width, sepal length, sepal width. कितने लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? कल डिस्कस किया था हमने, ये डिस्कस किया था ना, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, है ना? तो यस सर। based on these features we differentiate your iris centosa, iris versicolor, iris virginica. कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था। देखो हमारे पास हैंड क्राफ्टेड डेटा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हैं। सेपल लेंथ सेंटोसा की क्या है, उसके बाद वर्सिकलर की क्या है, एंड वर्जिनिका की क्या है। ओके, तो हमने कल डिस्कस किया था। सो वी हैव iris data set. Now I am going to show you image data set of iris. Okay, so this is iris image data set. Inside this directory folder we have 3 folders that denotes each class. We have iris virginica, iris versicolor and iris centosa. Now you can see we have different samples of iris centosa. We have I think total 67. We have 67 samples of iris centosa. Okay, same for we have different samples of iris versicolor, and same we have different samples of iris virginica. अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इमेज डेटा है। अब हमें इमेज को देख के बताना पड़ेगा कि कौन सा सैंपल कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ओके, सो आर यू गाइस रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन? अभी मजा आने वाला है, क्योंकि जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती पहले हम वो करने वाले हैं। क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। ओके, सो teachable machine. Teachable machine is a tool which is used to create machine learning models
if you want to create an Android app which integrates your machine learning concepts, then you can use teachable machine. What it will do, it will create a TensorFlow Lite file of machine learning model there, which you can use for your एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड एनीथिंग. कोई भी ऐप बना रहे हो ना, वहाँ पे अगर मशीन लर्निंग की ज़रूरत है, देन यू कैन यूज़ टीचेबल मशीन. या आपके लिए कोई भी कोडिंग, जीरो कोडिंग स्किल्स भी आपके पास, तब भी टीचेबल मशीन का यूज़ कर सकते हो. टीचेबल मशीन सर्च करना गूगल पे, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर चले जाना. ठीक है, गेट स्टार्टेड. वी हैव three options: image project, audio project, pose project. Okay, and we know that we have iris data of image. Okay, we have image data set, then we will use image project, standard image model. Now you can see we have different options: class, add image samples, class 2. What is your class? Class is your स्पीसीज नेम. कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे पास फीचर्स थे और हमारे पास एक टारगेट कॉलम था, यानी कि जो हमने प्रेडिक्ट करना है. सो स्पीसीज इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, अ टारगेट वेरिएबल जो हमने प्रेडिक्ट करना है. अगर ये फीचर्स होंगे तो कौन सी स्पीसीज होगी. ओके, सो स्पीसीज इज योर टारगेट वेरिएबल. अब जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, क्लास 1 क्या थी आपकी? क्लास 1 लेट अस सपोज सेंटोसा है. ठीक है, तो हमने क्लास का नेम दे दिया सेंटोसा. अब हम क्या करेंगे? इमेज ऐड करेंगे, जो भी सैंपल्स है हमारे पास. अब इमेज हम सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने क्लिक किया ऐड पे. अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अपने लोकल सिस्टम से इंपोर्ट कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव से इंपोर्ट कर सकता हूँ. अभी मेरा लोकल सिस्टम पे है, तो लोकल सिस्टम पे क्लिक करूँगा. फिर हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा डेटा सेट था वहाँ पे जाएंगे, आयरिस इमेज डेटा सेट. कैन गो आयरिस सेंटोसा. सबको सेलेक्ट कर लो. ठीक है, वी हैव 67 सैंपल्स ऑफ आयरिस सेंटोसा. देन जस्ट क्लिक ऑन ओपन. यू कैन सी वी हैव 67 सैंपल्स ऑफ आयरिस सेंटोसा. क्लियर गाइस? कैसे किया हमने? पहले क्लास नेम दिया, उसके बाद जो भी सैंपल्स थे हमने वो इंपोर्ट कर दिए आयरिस सेंटोसा फोल्डर के अंदर, जितने भी सैंपल्स थे. क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. हाँ, काफ़ी इजी है ये तो. हम बिना कोडिंग के कर रहे हैं, तो कोई भी कर देगा. ठीक है, अब आगे जाते हैं. पहले हमारा था स्पीसीज था हमारा सेंटोसा. ठीक है, जो हम कल प्रेडिक्ट कर रहे थे. देन वी हैव आयरिस वर्सिकलर. आयरिस वर्सिकलर में देखो हमारे पास पेटल लेंथ ज़्यादा है, जो डिफ्रेंशिएट करती है कि अगर सेपल लेंथ ज़्यादा है तो वो क्या होगा? आयरिस वर्सिकलर होगा. ओके, सो अब हम वर्सिकलर यहाँ पे यूज़ करेंगे. सेकेंड क्लास हमारी क्या है? वर्सिकलर, दूसरी स्पीसीज है. अब हम क्या करेंगे? अपलोड पे जाएंगे. देन वी कैन गो चूज इमेज from your files. Then you can select all the images that are available in your versicolor. Okay, open iris versicolor folder and you just need to select all the images that are available inside this folder. Control A करके तुम सारे select कर सकते हो. Then you just need to click here open. Now you can see we have total 269 इमेज सैंपल्स. और पहले क्या था? आयरिस सेंटोसा, आयरिस वर्सिकलर. अब हमारे पास एक और क्लास है. देन ऐड अ क्लास. यहाँ पे देखो सेंटोसा हो गया हमारे पास, वर्सिकलर हो गया. ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचा है वर्जिनिका. ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्जिनिका को जो डिफ्रेंशिएट करता है उसके फीचर्स करता है. इसकी देखो यहाँ पे विड्थ काफ़ी कम है, इसकी विड्थ काफ़ी कम है, जो इसको औरों से डिफ्रेंशिएट करती है. ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 3 आयरिस वर्जिनिका. ओके, देन सेम वी हैव टू follow same procedure also. We have to upload images. Okay, choose images from your files.
अब वर्जिनिका में जितने भी थे उसको सेलेक्ट कर लो, ओपन कर लो, हो गए, सारे आ गए। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. बस हो गया, हमारा Yes, sir. मॉडल बन गया है। इतना ही करना था इसमें। अब हमें क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करना है। यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, ट्रेन मॉडल। इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेन योर मॉडल, ठीक है। प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग डेटा, वो कितना इजी था। अगर किसी को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो वो भी अपना जो है मॉडल बना सकते हैं। नाउ इट विल टेक आई थिंक 2 मिनट्स। ये जो 50 है ना, दिस इज योर इपोक्स। आई विल डिस्कस इसके बाद में ना कोडिंग भी बताऊंगा आपको कि कैसे कोडिंग इसका वर्क करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो समझना ज़रूरी है। सो वी विल डिस्कस योर कोडिंग पार्ट। तो गाइस, फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिकली खुल गया। अब मैं यहाँ पे ना सर्च करता हूँ। अब टेस्टिंग का पार्ट आ गया। टेस्टिंग में हम क्या करेंगे ना, इमेज देंगे मॉडल को टेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कि ये इमेज एक्चुअली में है या नहीं। ओके, तो मैं गूगल पे जाता हूँ और इमेज सर्च करता हूँ टेस्टिंग के लिए। एक रैंडम इमेज मैं नेट से ढूंढ रहा हूँ और वो देखता हूँ कि मेरा मॉडल बता पाता है कि नहीं ये सेंटोसा है, वर्सिकलर है, वर्जिनिका है। ओके, आइरिस सेंटोसा। मैं भी गूगल पे गया और मैंने सर्च किया। ओके, अब इसका नाम तो पता नहीं चल रहा, बट कोई ना। ये वर्सी कलर है, वैसे मोस्टली वर्सी कलर ही है ये। यू कैन सी 98% वर्सी कलर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब मैं Yes, sir. सेंटोसा का कोई सैंपल लाऊंगा ना, वो भी यहाँ पे इसके सामने दिखाऊंगा तो वो बताएगा कि सेंटोसा है। तो 99% ही प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये क्या है, वर्सी कलर है। अब मैं ऐसी कोई और सैंपल लाता हूँ, ऐसे मिल नहीं रहा लेकिन सैंपल्स मिल नहीं रहे। सेम ही सैंपल मिल रहे हैं वर्सी कलर के। ये कौन सा है? ये आपका है सेंटोसा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आप अपना टेस्ट कर सकते हो मॉडल इसके बाद। क्लियर गाइस? कितना So, इजी like था मशीन after लर्निंग। exporting it, we can use it in our application, right? यस, Very नाउ good. वी कैन एक्सपोर्ट अवर मॉडल। यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एक्सपोर्ट मॉडल। अब हमें एंड्रॉइड में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लाइट। ओके, एक्सपोर्ट लाइट, फ्लोटिंग पॉइंट ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे यूज नहीं करना है जेएस में, यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं करना है। बस टेंसरफ्लो लाइट पे क्लिक करना है, फ्लोटिंग पॉइंट, एंड डाउनलोड माय मॉडल। It will take some time to convert your model in TensorFlow Lite file, because when you open your Android Studio, or किसी Android development आता है, then there is an option called TensorFlow Lite model. You have to import TensorFlow Lite file. Okay, मैंने भी बनाया कुछ मॉडल, तो वहाँ पे TensorFlow Lite फाइल मैंने यूज़ किया था। हाँ, मैंने यहाँ से यूज़ नहीं किया था, मैंने खुद अपना मॉडल बनाया था, तो मैं दिखाता हूँ। आप लोग कहोगे ये लोग ये इसी से बना लेते हैं, ये कुछ लोग कह रहे होंगे ना कि टीचेबल मशीन से बना लेते हैं सब। नहीं, ये मैंने कोड लिखा था अपना, क्योंकि अपना कोड लिखते हैं ना तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन टीचेबल मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो अपने हिसाब से करता है। पर हमने अपने उससे बार बार टेस्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स लगानी है, तो हम यूज़ करते हैं खुद का कोडिंग। अगर कोडिंग आता है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये फेस इमोशन के बेसिस पे था,
तो मैंने अपना बनाया था खुद का मॉडल, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बनाए थे, जैसे ये प्लांट लिव डिजीज डिटेक्शन का था, तो मैंने खुद का कोड लिखा था, क्योंकि मैंने उससे भी ट्राई करोगे तो ठीक है, कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, अच्छा है। अगर कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप बना ले रहे हो, तो 5 मिनट भी नहीं लगे बनाने में। क्लियर एवरीवन? अब कोडिंग पे चलें। कितने लोग बना सकते हैं अब अपना मशीन लर्निंग मॉडल बिना कोडिंग के? प्लीज रेज योर हैंड। है ना, सब लोग बना सकते हैं। किसी को डाउट होगा तो वो वीडियो देख लेना, दोबारा से बना सकते हो। अब हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अब हमारे वाले हैं कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं जो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। फिर भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोड लिखने को नहीं बैठूंगा, क्योंकि डीप लर्निंग में लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरे पास अभी, मैं थोड़ी देर पहले भी 7-8 बजे मैंने लिखा था आयरिस डेटा सेट के लिए, तो सेम कोड मैं आपको दिखाऊंगा, सारे लाइंस रन करूंगा, ठीक है। अगर लिखने को बैठूंगा तो 1 घंटा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, तो लिखूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको रन करूंगा और आपको जितना भी कोड है पूरा समझाऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज गूगल कोलैब। वी नो दैट गूगल कोलैब इज योर क्लाउड टेक्नोलॉजी। I already saved my model as ML Static Jam Iris Image Data. काफ़ी अच्छा था, टीचेबल मशीन। सो गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोड है, फिर भी मैंने कोड काफ़ी कम कर रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने, वैसे तो काफ़ी चीज़ें यूज़ होता है, विजुअलाइजेशन के लिए होता है, बहुत कुछ होता है, तो स्टिल मैंने काफ़ी छोटा कर दिया कोड ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है ना, नाउ वी हैव टू import our data set into your Google Drive. Okay, if you want to use folder, you cannot use directly in your Google Colab. You have to mount your Google Drive. Okay, Google Drive open करता हूँ। Google Drive जैसे ही आएगी ना, आप लोग क्या करना है, न्यू अपलोड फोल्डर, जस्ट क्लिक ऑन द फोल्डर आयरिस इमेज डेटा, ठीक है, बस हो गया। आयरिस इमेज डेटा सेट पर क्लिक करने के बाद अपलोड कर देना है, अपलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है तो मैं नहीं करूँगा। देखो, मैंने अपलोड किया है आयरिस इमेज डेटा सेट, ओके, सो इट इज ऑलरेडी अपलोडेड इन माय गूगल ड्राइव। नाउ आई कैन यूज दिस डेटा बाय माउंटिंग माय ड्राइव, ओके। सो here we have different files, file, edit, view, insert. Here you can see we can upload, if we have CSV data we can directly upload to session storage, but if we have any folder then we have to use your Google Drive, okay। Google Drive काफ़ी बेस्ट होता है। अगर घर से, अगर कॉलेज में जा रहे हो तो लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल ड्राइव में डाल दो अपना, और गूगल क्लाउड तो क्लाउड टेक्नोलॉजी है, कॉलेज से भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो सारा हम क्लाउड पे करेंगे, अपने लोकल सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए मैं क्लाउड का गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ और ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ टू माउंट Google Drive in my Google Colab, I have to use code from google.colab import drive, okay। If you want to run the cell, there are two options. You can run the cell by clicking here, run cell, or you can use shift plus enter. Now you can see first line is executed, means there is no error. Now I'm going to run second line, drive dot mount। ये क्या करेगा ना, आपकी जो ड्राइव है उसको गूगल कोलैब में ले आएगा, कनेक्ट कर देगा गूगल कोलैब से, ठीक है। पहले हमने गूगल डॉट कोलैब से ड्राइव इंपोर्ट करा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं अपनी ड्राइव को, कनेक्ट कर रहे हैं किससे, गूगल कोलैब से। Sorry to interrupt, Rohit, but
I would like to know how much longer it will gonna take. Time, Yeah, it will take 10 minute. Okay, sure, sure. Please continue. Please 10 continue. मिनट मैं क्योंकि कोड नहीं लिख रहा हूँ तभी मैंने, अगर मैं कोड मुझे पता था टाइम बहुत लगेगा इसलिए मैंने कहा कोड पहले से लिख लेता हूँ. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू माउंट माई ड्राइव. जस्ट क्लिक हियर ड्राइव डॉट माउंट. It will ask you some permission. Permit this notebook to access your Google Drive files. Connect to Google Drive. ओके, परमिशन मांगेगा ड्राइव कनेक्ट करने के लिए. मैं अपना अकाउंट चूज करूंगा. जस्ट अलाउ. और एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना. जिस अकाउंट से मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ, सेम अकाउंट में अपना डेटा सेट ड्राइव में अपलोड करना. सेम अकाउंट है दोनों जगह, और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट यूज करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा. ओके, नाउ यू कैन सी देयर इज अ फोल्डर ड्राइव. इनसाइड folder I have a sub folder my drive. Inside my drive I have different different folders, and you can see I have iris image dataset in which I have 3 classes: iris sentosa, iris versicolor, iris virginica. And in iris sentosa we have 67 samples. Iris versicolor we have different samples. Means you can see now I have imported my drive and now I can access my folder. Okay, so now the third step is import necessary libraries. Libraries are what? Libraries are your collection of functions. ठीक है, कल भी डिस्कस करा था. ओके, तो आई होप आपको सब क्लियर होगा कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं. सो टाइम नहीं है तो जल्दी से बताता हूँ. Import TensorFlow as TF. TensorFlow is also a library that consists various functions related to, like if you want to import your data set, if you want to import your image data set, then you can use your TensorFlow. Okay, हमारे पास CSV था, नॉर्मल फंक्शन था, नॉर्मल चीज़ें कर रहे थे, कल तक तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो तब हम क्या कर रहे थे, pandas यूज कर रहे थे. बट नाउ वी आर यूजिंग TensorFlow. Okay, TensorFlow is a Google technology, Google ने डेवलप किया. So import TensorFlow as TF. TensorFlow.keras import models and layers. अब keras सब लाइब्रेरी है TensorFlow की, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास लेयर्स हैं. हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर है, हिडन लेयर्स हैं, आउटपुट लेयर्स हैं. CNN में क्या था, हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, मैक्स पूलिंग लेयर होती है, डेंस लेयर होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं. तो वो हमने उनको इंपोर्ट करना होता है. हम कहाँ से करते हैं इंपोर्ट? केरास लाइब्रेरी से. ओके, TensorFlow.keras import models layers. import matplotlib.pyplot. वैसे इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, मैंने लिख दिया फिर भी. ठीक है, matplotlib library is used to visualize the data set, to visualize the outcome. वैसे यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ बेसिकली ये दो ही यूज़ होंगे, TensorFlow, TensorFlow keras, क्योंकि अभी मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ. जस्ट क्लिक shift plus enter, or you can click here run cell. Clear. Now we have batch size, image size, channels and epochs. First of all, channels. If we have RGB image, RGB means red, green and blue. Okay, हमारे पास अगर इमेज डेटा है, कलर्ड इमेज है, तो वो हमारे RGB के अंदर आती है. RGB मीन्स RGB मीन्स वी हैव 3 चैनल्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक. अगर हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है ना, तो हम सिर्फ एक ही चैनल का यूज़ करते हैं. RGB है, हमारे पास कलर्ड इमेज है तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं. एक चैनल हमारा रेड को कर रहा है, एक ग्रीन को, एक ब्लू को. हमारे पास 3 चैनल यूज़ होते हैं. अगर हम ग्रे स्केल इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास हम बस एक ही चैनल यूज़ करते हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? बैच साइज. अब बैच साइज क्या होता है? आई नो थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि डीप लर्निंग पढ़ रहे हो भाई, थोड़ा तो होगा ही. ठीक है, बैच साइज. हमारे पास टोटल जो इमेजेस हैं वो अप्रॉक्स 400 है सबको मिला के. ठीक है,
इसमें 67 है, इसमें 200 समथिंग के आसपास है, और इसमें 200 के समथिंग के आसपास है, और इसमें हाँ 200 के आसपास है। वर्जिनिका में हमारे पास है 80 के आसपास, मतलब टोटल हमारे पास 400 इमेज है। अब बैच साइज क्या करता है ना, बैच साइज डिफाइन करता है फॉर ईच इपोक वी आर गोइंग टू यूज 16 सैंपल्स। ओके, मीन्स हमारे पास लेट सपोज 400 इमेज है, ठीक है। बैच साइज हमारे पास अगर 16 है तो हम हर इपोक में, इपोक मतलब एक तरीके से लूप समझो, ठीक है। इपोक मतलब लूप समझो, वैसे तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इपोक जैसे 50 इपोक है तो पहले पहला इपोक चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो बैच साइज 16 का मतलब क्या है ना, फॉर ईच इपोक वी आर गोइंग टू यूज 16 सैंपल्स। ओके, तो हमारे पास 400 इमेजेस हैं, तो 400 को हम 16 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास लेट अस सपोज कुछ भी आता है, 20 के आसपास आता है, 25 कुछ भी आता है, 25 आता है बाहर पे, मीन्स वी हैव 25 आइटरेशंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बस इतना समझो। 16 बैच साइज है तो हम एक इपोक में 16 एग्जाम्पल्स, 16 सैंपल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इमेज साइज 128 मतलब क्या है, अगर हम अभी अभी मैंने आपको बताया था 5x5 की इमेज थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 128 इंटू 128 साइज की इमेज। चैनल डिस्कस कर लिया। इपोक is similar to your loop. Okay, we are going to train our model in different loop. Clear guys? इतना क्लियर हुआ? सर जो 25 निकाला था वो क्या था? जो ओके, 400 डिवाइडेड बाय 16 करके सपोज 25 आया था। मेरा आया 25 आया, ठीक है, 25 आया सपोज। अब हम क्या करते हैं ना, अब जैसे ये है, ठीक है, हाँ यहाँ पे है। अब लास्ट में ये बता रहा हूँ, देखो 25 कैसे आया। 25 21 है सपोज, ठीक है। उससे जो 25 से ज़्यादा होगा, हमने उसको फिर ट्रेनिंग डेटा सेट को अलग किया, टेस्टिंग को अलग किया, वैलिडेशन को अलग किया। तो ट्रेनिंग का सपोज हमारे पास आया 336। ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। ईसा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सपोज जब हमने डेटा सेट को डिवाइड किया ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में, तो सपोज हमारे पास आया ट्रेनिंग के लिए 336, इतने सैंपल्स हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब हमारे पास बैच साइज है 16, ठीक है। तो 336 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब ये 21 क्या है, अब 21 क्या है, देखो 21 मीन्स हमें सारे सैंपल्स तो भेजने ही भेजने हैं मॉडल में, तो पहले हम क्या करेंगे, एक आइटरेशन में 16 सैंपल्स भेजेंगे, बस 16 सैंपल्स। पहले यहाँ पे देखो ये 21 है, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 21 आता है। जब 1 आ रहा है, 1 आ रहा है का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट आइटरेशन में मैंने 16 सैंपल्स भेजे। ओके ईसा, इतना क्लियर हुआ? प्लस यस सर। दूसरा आइटरेशन में मैंने 16 सैंपल्स भेजे, तीसरा आइटरेशन में मैंने 16 भेजे, ऐसे भेजते गया 21 आइटरेशंस हुई, तो मेरे पास 16 21 टाइम्स प्लस होते गया, तो वो कितना हो गया 336। मीन्स हमने सारे इमेज भेज दी एक ही पोक में। क्लियर? यस सर। और सबको क्लियर हुआ? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था वैसे ये बैच साइज का। हाँ शिवांश, क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ ना? एक बार हैंड रेज कर दो। हाँ मतलब मोस्टली लोगों को क्लियर हो गया ये, ठीक है। वैसे काफ़ी टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, वो समझाने लोगों में बहुत टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। सर एक बार प्रैक्टिकल करके देखते तो हो जाएगा। हाँ 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 भाई, हमारे पास बैच साइज हो गया, ये सब हमने क्लियर कर दिया। अब देखो जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, हमारे पास वैसे 1042 हो गया। डेटा सेट
means in for CSV file. Yesterday we used your pandas library. Today we are going to use your TensorFlow file. Okay, we have tf.keras.preprocessing.image dataset from directory. This is your path of your dataset. Okay, how you can get? Just need to click here, three dot, and click here, copy path, and just paste here. This is your path of your data set. Okay, then we have seed, shuffle. सीड और सफल बहुत चीज़ें होती हैं, मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा. सीड अब सफल होता है. सफल मतलब क्या होता है ना, इमेज जो हमारे पास डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स है. तो सफल क्या करेगा ना, डेटा सेट की जो अंदर सैंपल्स हैं उनको सफल कर देगा ऊपर नीचे. ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है. मोस्टली प्रेफर करते हैं कि सफल यूज़ करना है. फिर सीड क्या होता है, सीड इज़ लाइक योर आईडी, जो डिफाइन करता है कि जितनी बार भी सफल करोगे मतलब सफल एक पैटर्न में होगा. ठीक है, तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है. ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं. बेसिकली ये समझो सफल क्यों यूज होता है, डेटा सेट के सैंपल्स को सफल करने के लिए. इमेज साइज हमने लेंथ एंड विड्थ 128, 128 इमेज साइज दिया. बैच साइज जहाँ पे डिफाइन कर रखा है, देखो बैच साइज हमने 16 डिफाइन कर रखा है, इमेज साइज 128 डिफाइन कर रखा है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेटा सेट इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा. Now you can see we have 421 files, means we have 421 image samples. Now we can print class names. Class names is dataset dot class names. Just print the class names. We have iris sentosa, iris versicolor, same. Now length of dataset. Length of dataset is 27. चलो ईसा बताएगी. ईसा, what is 27? Can you hear me, Isa? The length of data set as like the previous line suggests. हाँ, अभी मैंने बताया था. देखो जैसे हमारा 21 आया था ना, वो कैसे आया था, जब हमारे पास 336 सैंपल्स थे. ठीक है, अब यहाँ पे 27 आ रहा है. 27 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें 421 फाइल्स हैं. 421 को अगर हम बैच साइज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स 27 आता है. सो दिस इज योर लेंथ ऑफ डेटा सेट. क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके, सो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फंक्शन. अभी क्या कर रहा है, बेसिक फंक्शन समझो. ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट डिवाइड्स योर डेटा सेट इनटू 3 पार्ट्स: ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा. कुछ लोग कहेंगे कल तक तो हमने दो ही चीज़ पढ़ी थी, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. देन व्हाई यू आर डिस्कसिंग हियर वैलिडेशन डेटा? वैलिडेशन डेटा इज यूज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिंग डेटा. ओके, यहाँ पे देखो, जब हम ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, तो हम इसको 50 इपोक में ट्रेन कर रहे हैं. देखो, इपोक 1, इपोक 2, 16 ऐसे करके 50 इपोक लगा रखे हैं. यानी कि 50 बार हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं. तो ट्रेनिंग के टाइम पे जो हम डेटा यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो हम उस टाइम पे वैलिडेशन डेटा यूज़ करते हैं. वी यूज वैलिडेशन डेटा टू इवेलुएट आवर मॉडल in each epoch. Okay, after when we train our model, like you can see I have trained my model by 50 plexus 50, मतलब कि हमने 50 epoch लगा दी, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया. जब हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो गया है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्टिंग डेटा यूज़ करते हैं. लास्ट में मॉडल बनने के बाद जब मॉडल ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे हम वैलिडेशन डेटा का यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए. जब हमारा मॉडल अच्छे से रेडी हो जाता है तो अनसीन डेटा टेस्टिंग डेटा से अलग से चेक करते हैं. ओके गाइस, क्लियर? यस सर. हाँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा. वीडियो 2-3 बार देख लेना, या फिर एक कोड में ऐसा कमेंट सब में कमेंट डाल के दे दूंगा, गिटहब में जाके देख लेना. सो ये फंक्शन क्या करता है, डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. देखो, ट्रेनिंग डीएस, ट्रेन डीएस, वेल डीएस, टेस्ट डीएस. It will divide your data set into 3 parts: training data, validation data and testing data. देखो यहाँ पे ये फंक्शन है. ये फंक्शन कॉल, जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाता है. डिफाइन फंक्शन, मैंने फंक्शन डिफाइन करेगा. पाइथन तो पढ़ रखी होगी आपने, तो पता होगा. ठीक है, तो मैंने डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे डेटा सेट मैंने पास किया. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है,
डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, अब मैंने क्या करा, तीनों डेटा सेट का लेंथ फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही जितने भी सैंपल्स थे उसको बैच साइज से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा ट्रेनिंग डेटा 21 आ गया था, वैलिडेशन 2 आ गया, टेस्टिंग डेटा ये आ गया। अब देखो ट्रेनिंग स्प्लिट 0.8 मीन्स here I am using 80% data for training, 10% data for your splitting, sorry, validation, and 10% data for your test data. Okay, इसने ऐसे दे रखा है, लेकिन आना तो हाँ ठीक है, अप्रॉक्स सिमिलर ही है, मतलब कम ही है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास ट्रेनिंग डेटा 80% है अप्रॉक्स, फिर ये 80% के बाद 10 में डिवाइड करेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्रिएटिंग योर मॉडल। CNN में क्या होता है ना, मॉडल डिफाइन करना आना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। देखो हमारे पास पहले हमने सेव डिफाइन किया, बैच साइज, इमेज साइज, चैनल्स। वी हैव 3 क्लासेस, n क्लासेस मीन्स 3 क्लासेस। वी हैव सेंटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। सो अगर हमारे पास 10 क्लास होती तो हम यहाँ पे 10 रख लेते हैं, ठीक है। n क्लासेस मीन्स वी हैव 3 क्लासेस हियर। Now I am going to create layers. My first layer is Conv 2D layer. अब Conv 2D layer क्या होती है, मैंने अभी डिस्कस किया था, हट गया आपको, जब मैंने यहाँ पे एक बनाया था, ठीक है, 5x5, जब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था कर्नल्स, इमेज को फीचर मैप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो तब मैं Conv 2D लेयर का यूज़ कर रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे आई एम यूजिंग 3x3 कर्नल, आई हैव 32 कर्नल्स। वहाँ पे मैंने एक कर्नल यूज़ किया था, बट जब मैं रियल लाइफ में अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 32 कर्नल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट याद रखना। वी हैव 32 कर्नल्स, कर्नल साइज इज 3x3, एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली it is used to activate, it will tell you like which neuron will be activated, कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। अभी काफ़ी डीप में है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, वैसे समझा सकता हूँ लेकिन काफ़ी डीप में है। एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, बहुत चीज़ें हैं। सो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होगा, कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा, कौन सा न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज साइज एंड चैनल्स प्रोवाइड कर दिए। फर्स्ट लेयर इज क्लियर। कॉन्व 2D लेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं, फीचर मैप क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे मैंने कर्नल यूज़ किया 3x3 का और 32 डिफरेंट कर्नल यूज़ करे। सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ फीचर मैप। क्लियर एवरीवन? Yes, दिस sir. लेयर। नाउ वी हैव अनदर लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर। ये तो अभी भी बताने की जरूरत है क्या मैक्स पूलिंग लेयर क्या है? नहीं क्लियर सर। क्लियर हो गया? अभी डिस्कस किया था मैक्स पूलिंग लेयर क्या करता है, साइज को छोटा कर देता है। मेरे पास 4x4 सर का, मास्क लगा देती है वो, मास्क, पुट मास्क ऑन द इमेज। यस, ठीक है। तो हमारे पास 2,2 का पूल साइज है, तो इस पूल साइज में वो चेंज कर देगा। हमारे पास जैसे 4x4 का बना था तो उसको उसने 2x2 में चेंज कर दिया था हमारे पास। फिर हमारे पास हम दोबारा से कन्वोल्यूशन लेयर लगा रहे हैं। अब देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था वो 5x5 का लिया था, अब जो रियल इमेज है वो है 120। यस, So why do you prefer max pooling over average pooling? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मोस्टली मैक्स पूलिंग ही यूज करते हैं। ओके, उसल तेरे को पता है? Well, there are two poolings, max pooling and average pooling. So जो रोहित ने एग्जांपल दिखाया था वो आई गेस एग्जांपल था एवरेज पूलिंग का। तो उसमें एक फिल्टर के अंदर जितने भी तुम्हारे कॉलम्स होते हैं तो उनका नहीं, एवरेज निकलता है। ये मैक्स पूलिंग यही बता रही है, जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें से मैक्स पूलिंग ये मैक्स वैल्यू लेते हैं, इसमें से मैक्स ये 30 लेते हैं। ये मैक्स पूलिंग हम फीचर मैप का साइज रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अब वो पूछ रही है कि व्हाई वी आर प्रेफरिंग योर मैक्स पूलिंग, व्हाई नॉट एवरेज पूलिंग? वेल इसका कोई एक सॉलिड आंसर नहीं है। यू कैन डू इधर हिडन ट्रायल और वी मोस्टली प्रेफर टू गो विद मैक्स पूलिंग। सुशांत, यू वांना बिकॉज पुट सम लाइट ऑन इट? ये ना बिकॉज होता है क्योंकि ना मान लो कोई ब्लर इमेज है, ठीक है,
अब किसी ब्लर इमेज में अगर लाइक हम कुछ एजेस को डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो लाइक एवरेज पूलिंग क्या करता है, वो बेसिकली ना वो करता है, क्या कहते हैं, इमेज को स्मूथ करने की कोशिश करता है ज़्यादा, ठीक है, तो उससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाते एजेस। बट वही चीज़ अगर तुम मैक्स में लगाओगे तो वो एजेस जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं। यस, दिस इज राइट आंसर। ये मतलब ये आंसर है। Thank you. तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमने कन्वोल्यूशनल लेयर लगाया, मैक्स पूलिंग लेयर लगाया, हमारे पास इमेज थी 128 क्रॉस 128 की, हमने उसको हमने उसको कन्वोल्यूशनल लेयर लगा के उसके साइज़ को डिक्रीज़ किया होगा। लेट अस सपोज हमारा 80 क्रॉस 80 का आया, ठीक है, 80 क्रॉस 80 के बाद हमने मैक्स पूलिंग लेयर लगाया तो हमारा लेट अस सपोज 40 क्रॉस 40 का आया, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से कन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे, हम ऐसे करते करते उसके साइज़ को कम करते जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन योर लेयर्स। ओके, कन्वोल्यूशनल लेयर्स, मैक्स पूलिंग लेयर्स, दोबारा से हम कितनी भी लेयर्स लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, अभी मैंने यहाँ पे 12 लेयर्स लगा रखी, सपोज मैंने 15 लेयर्स लगा दी, 20 लेयर्स लगा दी। अब 20 लेयर्स के बाद क्या होगा ना, हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट करने लग जाएगा। अब ओवरफिट क्या होता है, जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी उज्ज्वल एंड सुशांत, जल्दी बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ओवरफिट क्या होता है ना, अब हमारे पास जब हमने मॉडल बनाया, ठीक है, अब ये हमारे पास ट्रेनिंग है, ये टेस्ट है, ये ट्रेनिंग डेटा है, ये टेस्टिंग डेटा है। ओवरफिट मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा को उसने इतने अच्छे से समझ लिया है कि वो उससे बाहर कुछ सीख ही नहीं रहा है। मीन्स अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मैंने डेटा दिया था, कुछ भी डेटा दिया था, और उसने ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग डेटा से सब कुछ सीख लिया, राइट। उसने सब कुछ सीख लिया कि सेंटोसा इस तरीके का है, कलर ऐसा है, साइज ऐसा है, पैटर्न लेंथ इतनी आ रही है, ये सब आ रहा है। उसने बहुत अच्छे से सीख लिया कि सेंटोसा क्यों डिफर है वर्सी कलर से। बट मैंने उसको इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है कि उसको उससे बाहर का कुछ आ ही नहीं रहा है। अब मैं उस पर टेस्ट डेटा दे रहा हूँ, मैं कुछ रैंडम इमेज दे रहा हूँ जो उसने कभी देखी नहीं है, वो बता ही नहीं पाएगा कि ये सेंटोसा है, वर्सी कलर है या वर्जिनिका है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ही सीमित हो गया। उसने ट्रेनिंग डेटा को इतने अच्छे से सीख लिया है कि उससे बाहर का उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो सिंपल एग्जांपल है, वैसे मैं टेक्निकल वर्ड्स में ही बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई वो नहीं रहेगा। सिंपल एग्जांपल क्या है, जब ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल अच्छे से परफॉर्म करता है, बट टेस्टिंग डेटा पे वो एक्यूरेसी 0 या फिर 10%, 20%, काफ़ी कम एक्यूरेसी देता है टेस्टिंग डेटा पे, ठीक है, और ट्रेनिंग पे अच्छे से एक्यूरेसी दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड योर ओवरफिट कंडीशन। क्लियर? काफ़ी इजी वे में समझा था। क्लियर एवरीवन? यस सर। ईसा क्लियर? हाँ ठीक है। सो दिस इज योर ओवरफिट कंडीशन। सो हम लोग क्या करेंगे, जो लेयर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे, जैसे 10-15 चेक करेंगे, फिर 10 लेयर लगाएंगे, फिर 15-20 से ज़्यादा लगा दी तो मॉडल इतना ज़्यादा समझ गया उसके फीचर्स को कि वो ट्रेनिंग पे ही एक्यूरेसी दे रहा है, टेस्टिंग पे एक्यूरेसी दे ही नहीं रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड योर overfit condition. So currently I am using 12 layers. Okay, now I am going to compile your my model. Compile means यहाँ पे मैं accuracy find करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मॉडल को रन करूँ तो मुझे पहले तो वो accuracy शो करे कि accuracy क्या है, लॉस शो करे। लॉस से क्या समझते हो आप? तो सिंपल है, लॉस मतलब क्या हुआ कि लॉस तो लॉस है यार। लॉस मतलब लॉस काफ़ी कम होना चाहिए। हमारा लॉस अगर कम होगा तभी तो अच्छा होगा, तो मॉडल तभी अच्छा होगा जब उसका लॉस कम होगा, ठीक है, और एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। सिंपल वे में समझ सकते हो, ठीक है। तो मॉडल को कंपाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पार्म, दिस इज योर पैरामीटर्स। इन कॉन्व 2D आई हैव 896 पैरामीटर्स एंड आउटपुट शेप 126, 32। 126 का मतलब क्या है? 126 मतलब हमारे पास जो इमेज थी 128 क्रॉस 128 की थी। जब मैंने कॉन्व 2D लेयर्स लगाई
तो उसने क्या कर दिया, इनपुट डेटा को 126 में चेंज कर दिया। जैसे मैंने 5x5 लगाया था तो उसने 3x3 में चेंज कर दिया था। सेम पहले मेरे पास 128x128 की थी, तो मैंने उसको किस में चेंज कर दिया, 126 में। फिर मैंने मैक्स पूलिंग लगाई तो देखो उसने 63 में चेंज कर दिया। दोबारा से मैंने कॉन 2D लेयर लगाई, उसने 61 में चेंज कर दिया। क्लियर हो रहा ना, यहाँ पे काफ़ी ईजी है, द ईजी वे में समझा रहा हूँ। क्लियर हो रहा ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे करके दोबारा से कॉन 2D लगाई तो उसने 28x28 में चेंज कर दिया। फिर मैक्स पूलिंग 2D 14 तो ऐसे करके कम करते जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें, मॉडल को फिट कर रहे हैं। कल मैंने बताया था मॉडल को फिट करना मतलब हम मॉडल में ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं और टेस्टिंग डेटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, तो हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करते समय वैलिडेशन डेटा देंगे। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेन माई मॉडल। अब देखो डीप लर्निंग का अगर हम मॉडल लगाते हैं ना तो वो टाइम लेता है। ये तो फिर भी जल्दी ले रहा है क्योंकि डेटा सेट काफ़ी छोटा है। कभी कभी क्या होता है ना, पूरा 1 दिन ले लेता है, 2 दिन ले लेता है। ट्रेनिंग हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं रैम यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ 12.7 GB। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें रैम रिक्वायर्ड थी 24 से ज़्यादा की, तो मैंने फिर हैकाथॉन का गूगल को लैब लिया। फिर किसी को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बताना, अगर किसी को 12 GB से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास कुछ नोटबुक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो जहाँ पे आपके पास 24 GB तक की रैम होगी। अगर किसी को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को DM कर लेना, मैं उनको वो फाइल शेयर कर दूँगा। तो आपने बस डायरेक्ट ओपन करना है, यहाँ पे 24 शो हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है इमेज डेटा पे। अगर इमेज डेटा हमारे पास ज़्यादा है तो ट्रेन होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे मैंने 50 इपोक लगा रखे हैं। सो नाउ यू कैन सी, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहले आइट्रेशन में उसने 16 सैंपल्स लिए, दूसरे आइट्रेशन में उसने 16 सैंपल्स लिए। ऐसे करते करते उसने टोटल 336 सैंपल्स लिए, टोटल 21 में। अभी थर्ड इपोक हो गया। ऐसे करके 50 इपोक तक वो ट्रेन करते रहेगा। ठीक है, 50 इपोक तक वो ट्रेन कर देगा। उसके बाद फाइनल जो हमारी एक्यूरेसी आएगी, देखिए यहाँ पे मेरी 98 आ रही थी, तो ऐसे करके जब ये ऊपर का रन हो जाएगा 50 बार, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्यूरेसी चेक करने के लिए। अब देखो लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट DS। हम लोग टेस्ट DS कब यूज़ करते हैं, जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है अच्छे से। ठीक है, ट्रेन हो गया, उसने 50 इपोक रन कर ली। 50 इपोक के बाद हम टेस्ट एक्यूरेसी चेक करने के लिए लास्ट मॉडल बनने के बाद हम एक अनसीन डेटा देते हैं उसको कि तो तू बता कि हमारा मॉडल सही वर्क कर रहा है या नहीं, मॉडल सही बना है या नहीं। लास्ट में यूज़ करते हैं टेस्ट DS। ओके, वरना यहाँ पे देखो ये अभी पहले 68 था, 59 था, 81, ऐसे 50 इपोक तक ही एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। अभी 66 है, अभी बढ़ते जाएगा, लास्ट में एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो दिस इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कोड। वैसे कोड फिर भी मैंने काफ़ी छोटा किया है। उज्जवल ठीक है ना, मतलब फिर भी मैंने कोड काफ़ी छोटा कर दिया। वैसे काफ़ी चीज़ होता है, लेकिन समझाने के लिए फिर भी ठीक है। As long as they are getting it, it's fine. सब क्लियर हुआ ना सबको? यस यस सर। Shivansh has raised his hand. हाँ शिवांश बोलो। रिसोर्सेस, देखो कुछ बुक्स उज्जवल ने सेंड कर रखी है। ठीक है, कल सेंड की थी या फिर किसी ने सेंड की थी बुक, तो बुक प्रेफर कर सकते हो आप। बुक अगर नहीं करना चाह रहे हो तो वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। वेबसाइट मैंने देखो अभी बताया, टुवर्ड्स डेटा साइंस, काफ़ी अच्छी Towards वेबसाइट। data science and medium blogs, they हाँ। are best. जब भी ML से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो पहला जो आएगा वो टुवर्ड्स डेटा साइंस या फिर जावा पॉइंट, ये सभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आता है टुवर्ड्स डेटा साइंस। तो यहाँ से एक्सप्लेन सब समझ सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे बताया था कैसे ये हम कर्नल अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझाया था इसने। और अभी ईसा ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ ये
मैक्स पुलिंग, एवरेज पुलिंग, यहाँ भी इसने बता रखा है वैसे मैक्स पुलिंग परफॉर्म्स अ लॉट बेटर देन एवरेज पुलिंग। ठीक है, इसका रीज़न सुशांत ने बता दिया है। तो वेबसाइट्स प्रेफर कर सकते हो और वीडियोस पर यूट्यूब प्लेलिस्ट, हाँ यूट्यूब प्लेलिस्ट भी हैं काफ़ी, मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूबर्स भी हैं कुछ अच्छे, मैं शेयर कर दूंगा आज। भाई 11 बजा दिया यार, 11 बज गया। सो गाइस, अगर किसी को कोई डाउट है रिसोर्सेज, फिर दोबारा से उज्जवल रीशेयर कर देगा और यूट्यूब प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। और जितने भी कोड हैं, ठीक है, मैं उसका गिटहब रिपोजिटरी आज शेयर कर दूंगा कमेंट ऐड करके। और उसके साथ साथ हमारा एक और चीज़ रह गया यार, के मीन्स क्लस्टरिंग। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट मैंने वो कोड किया हुआ है, ठीक है, वो कोड मैं कमेंट के साथ शेयर कर दूंगा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। वैसे वो तो ईजी है वैसे। Sir, in our WhatsApp group, we will get the whole resources or Yes, playlist. yes, you will get. After the session, I'll share some of the important playlists related to machine learning and some recordings of previous classes, GitHub repository, all the resources that are required to understand concepts of machine learning. I'll share after the session. And also, sir, your LinkedIn account I will got on JDSC lead page. वहाँ पे तो नहीं होगा, मैं शेयर कर दूंगा GitHub, सॉरी लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर कर दूंगा। ठीक है, जी रोहित चंद्रा जोशी सर्च करोगे आ जाएगा वैसे। जी सर। रोहित चंद्रा जोशी यहाँ पे पहला है, देखो रोहित चंद्रा जोशी मशीन लर्निंग लीड। दिस इज माय प्रोफाइल। सुशांत सर, मैंने कर दिया था, आपने अभी एक्सेप्ट नहीं करा। सुशांत एक्सेप्ट कर ले भाई, क्यों कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दी, ठीक है, इसको ज्वाइन हो जाना। ओके, सो गाइस, कैसा था सेशन? देखो डीप लर्निंग काफ़ी हार्ड है, मैंने इसको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश कर रखी है। हम लोग अभी 3rd ईयर में है और डीप लर्निंग हमारा पूरा सब्जेक्ट है। न्यूरल नेटवर्क हमारा एक सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट था। तो मैंने फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश करी ताकि ईजी लैंग्वेज में समझ सको। एमएल के लिए कितनी पांडास, कितनी नंपाइज आनी चाहिए? ज़्यादा नहीं, पांडास एमएल के लिए ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, थोड़ा बहुत। लाइक डेटा सेट को कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा सेट पे हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमने डेटा सेट को विजुलाइज करना है, टॉप की 10 रोज, बॉटम के 10 रोज, और उसके साथ साथ सुशांत ने भी डिस्कस किया है, मैंने भी डिस्कस किया है। कल की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि पांडास के लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहले तो डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए। शिवांश, Sir, if there is a 3 minutes, so I can share something. यस यू कैन शेयर। Sir, I wanna say that sir, ये जो अभी मैं 2nd ईयर में हूँ ओके, और सीए से एआईएमएल ब्रांच है मेरी, तो ये एमएल की जो ये सीरीज चल रही है उससे बाकी को फायदा तो हो ही रहा है। मेरे को ये हुआ है कि ये सेम जो आप सुशांत सर ने स्टार्ट किया था हाँ, और आप जो पढ़ा रहे हैं, तो ये सेम मैं कॉपी करके अपनी कॉलेज में प्रेजेंटेशन सेम पेस्ट ही कर रहा हूँ, और विद द हेल्प ऑफ सुशांत सर पीपीटी एंड रोहित सर पीपीटी, एंड माय एचओडी सर इज इम्प्रेस्ड विथ मी, एंड माय फ्रेंड से भाई कहाँ से ला रहा है। वाओ, वाओ, ब्रिलियंट, क्या बात है। मेरे को बोल देना, हमारा नाम ले देना अंदर। बोल देना शारदा का चैट जीपीटी। ए, नाम चलता है सुशांत का तो। एनीवेज, like if you are able to spread it, so it's great. अच्छा है भाई, यस बस सर, आई विल डू इट सर। वो बात ऐसी है कि टियर 3 का कॉलेज है और मैं वहाँ बाकी तो प्रोजेक्ट है और बाकी मतलब आज यूनिवर्सिटी टॉपर्स अलग अलग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जीडीएससी को वहाँ लाऊं और वहाँ बिल्टअप करूँ वो कम्युनिटी। हमारे यहाँ है नहीं वो। ओ, कौन से कॉलेज से हो? सर, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, भोपाल। ओ ओके, मीन्स यू आर नॉट फ्रॉम शारदा। I was assuming he's from Kerala. Anyway, हाँ, sorry. सेम। नो सर। ओके, नाइस नाइस।
अच्छा है, मशीन लर्निंग समझो, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, सुशांत ने काफ़ी पढ़ा दिए, You can टीचर bring पढ़ाए। GDSC at your institution, like if it is possible, just go check out on website. Leads application are open. I think so. यस सर।